Israel is leading in agriculture. Like, Yes. do we have any collaborations with them? As on date, we don't have any formal collaboration with Israel. Hello and welcome to Kashmir Life Interviews. Today we are joined by a very special guest, Professor Nazir A Ganai, who is the Vice Chancellor of Sher Kashmir University of Agriculture Science and Technology. मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो वीसी साहब है वो सिर्फ शेरी कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के ही अब वीसी नहीं है, बल्कि अब उन्होंने जम्मू की जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसको भी देखेंगे. सो इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने मेहमान से. आई वेलकम यू टू द कश्मीर लाइफ. Thank you, dear. So how do you really see this your experience of these decades in teaching and research now coming into the administration? So how do you really trace this journey from administration, now from teaching to administration, and now as a vice chancellor of two universities? Thank you, Kashmir Life, for having me on the show with you. मुझे बताने में खुशी हो रही है कि यूनिवर्सिटी 1982 में ये यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद 1990 में दो यूनिवर्सिटीज़ बनी, वन SKUAST Kashmir and SKUAST Jammu, and since then we have traveled a lot in agriculture in the UT of Jammu and Kashmir now. अगर इस यूनिवर्सिटी का सफ़र देखें तो आज की तारीख में there are some such 74 universities in the country, and out of those 74 universities we stand as the 6th best state agriculture university in the country. And that 6th best is one single index of the contributions of this university in teaching, in research, in extension, and in innovations, and in outreach of our university to the farmers. ये cumulative index है और ये जो रैंकिंग है ये ICR करता है और एक सेट पैरामीटर के तहत. इसी तरह से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन भी रैंकिंग करती है यूनिवर्सिटीज़ की कंट्री लेवल पे, और वो रैंकिंग वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इनोवेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. सो ये बताने भी मुझे खुशी है कि जो 74 यूनिवर्सिटीज़ हैं कंट्री में, Ministry of Education has somehow ranked more than 1300 universities and institutions around the country, and out of those 1300 only 3 universities are figuring in their ranking of Atal Innovation Ranking. और उन तीन में we are one among those 3 universities who are figuring in the ranking of the Atal Innovation Ranking by Ministry of Education. हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के 10 स्टार्टअप्स हैं, 10 स्टार्टअप्स, और उन स्टार्टअप्स को एस्टैब्लिश करने के लिए उनको चाहे कुछ बेसिक सीड मनी, एंड दैट सीड मनी इज यूनिवर्सिटी इज नॉट प्रोवाइडिंग टू देम. वो सीड मनी दे compete at different levels, with different agencies of the government of India, जो सीड मनी बच्चों को दे, but that's a competitive grant. So all of those 10 startups have got seed money on the basis of the country level competitions. इसी तरह से हमने जो ये नया चलन यहाँ पे चेंज किया है कि दैट हाउ शुड वी गो अबाउट दीज इनोवेशंस, कि हमारी फैकल्टी जो आज तक उनका मैंडेट लग रहा था कि हमें सिर्फ पढ़ाना है यूनिवर्सिटी में और रिसर्च करना है, हमने कहा नहीं, अब पढ़ाना भी है, रिसर्च भी करना है, लेकिन नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दैट रिसर्च ideas into innovations, and those innovations into kind of the startups, and those startups should benefit the society. It should, once you have a startup or a business, it should reach to the ground. It should reach, when you create a startup means an enterprise, a business, that means you are creating opportunities for others, job opportunities, and you are also creating the wealth in the Jammu and Kashmir, and then you are giving some kind of a technology to the farmer or to the industry. तो उस लेवल पे भी है. लेट मी आस्क यू अबाउट दिस. जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, इसमें एक मैंडेट्स है, जैसे आपने बता दिया, पहला मैंडेट है लाइक टीचिंग, देन इट्स अबाउट रिसर्च, एंड इट्स आल्सो अबाउट इनोवेशंस आल्सो. सो हाउ इज दिस ऑल रीचिंग टू द फार्मर हु इज ऑन द ग्राउंड, या who may not have access to the university? जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि अभी जैसे फूड प्रोडक्शन इज़ वन इम्पॉर्टेंट कंसर्न ऑफ आवर्स, जो हमारा फूड प्रोडक्ट, राइस है, मेज़ है, वीट है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी है हमारा सीड इज़ अ कैप्सूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो हम सीड यहाँ पर डेवलप करते हैं. पिछले 50 सालों में हमने करीब 100 वाइराइटीज़ डेवलप करी है, लेकिन ऑल वाइराइटीज़ दे डू नॉट परफॉर्म सो गुड, बट देन
many of those varieties, उनमें से बहुत सारी varieties जो which are outstanding. For example, राइस में हमने पिछले 3 सालों से 4 सालों से एक वैरायटी रिलीज़ करी है, उसका नाम है शालीमार राइस 4. इसकी प्रोडक्टिविटी है 10 टन पर हेक्टेयर, जबकि नेशनल एवरेज है 2.5 to 3 टन. तो इट इज़ 3 times मोर इन प्रोडक्टिविटी दैन एनी अदर नेशनल वैरायटी. हमने यहाँ पे बासमती राइस आपने सुना होगा, अभी हमने कश्मीर का बासमती राइस जिसको हमने नाम दिया हुआ है शालीमार सुगंध. पहले ये था कि भाई शायद कश्मीर में हम बासमती कल्टिवेट नहीं कर सकते. अब जो हमने यहाँ का जो अपना जो बासमती वैरायटी ऑफ राइस डेवलप करी है, तो अगले साल, इस साल हम इसका सीड प्रोडक्शन चेन में हम आ जाएंगे, तो अगले साल से हम अपने फार्मर्स को देना शुरू करेंगे. तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा, वो 6 टन है, और उसमें एरोमा ज़्यादा है, और उसका प्राइस नॉर्मल राइस से डबल से भी ज़्यादा है. इसी तरह से हमने मुश्क बुज्जी जो आप हमारी ट्रेडिशनल वैरायटी है और काफ़ी उसमें एरोमा है, वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई थी, और हमने उसको रिवाइव कर दिया. रेड राइस की बात हो रही है. तो दीज आर द टेक्नोलॉजीज. आपका जो सैफरान है, सैफरान में दुनिया में कोई अभी तक एक भी वैरायटी रिलीज़ नहीं हुई है, क्योंकि सैफरान जो क्रॉप है वो एक कोलोनली मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वेरिएबिलिटी बहुत कम है. तो कॉर्म है, नीचे कॉर्म ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड कोलोनल मल्टीप्लिकेशन. तो हमने इस साल सैफरान की पहली वैरायटी रिलीज़ करी है, और उसका जो प्रोडक्शन बेटर है सैफरान की रिलीज. इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, वैक्सीन के बारे में, जो लाइव स्टॉक में वैक्सीन की बात चल रही है आजकल, हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त एट अ टाइम 6 वैक्सीन पे काम कर रही है. 2 वैक्सीन तो हमने दिए पहले से, एक है फुट रॉट वैक्सीन दिया हमने, और इस वक्त एक IBD वैक्सीन है पोल्ट्री में. और आपने सुना होगा शायद इंसानों में जो कोरोना वायरस होता है, तो मुर्गियों में भी एक वायरस होता है एवियन कोरोना वायरस, और उस एवियन कोरोना वायरस पे एक वैक्सीन डेवलप हो रही है यूनिवर्सिटी में, इन्फेक्शन ब्रोकाइटिस उसका नाम है. फिर ब्रूसेलोसिस एक बहुत बड़ा चैलेंज है पोल्ट्री इंडस्ट्री को. बड़ा लॉस होता है जब किसी पोल्ट्री फार्म में ब्रूसेलोसिस कोई डिजीज, और ये ब्रूसेलोसिस ये जो है ना जोनोटिक भी इंसानों में भी लग जाता है. तो इसके लिए भी वैक्सीन ऑलमोस्ट लास्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट में. एक और बीमारी है CCPP, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया. कहने का मतलब ये है कि किसी एक इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में अगर 6 वैक्सीन पे काम चल रहा है, दैट स्पीक्स अबाउट द कॉम्पिटेंस एंड द फोरसाइट एंड द विजन ऑफ द यूनिवर्सिटी. आपने मुश्क बुद्ध की बात छेड़ी. आप व्हाट इज इट स्टेटस क्यू एंड मार्केट, बिकॉज इट वाज आल्सो फेसिंग मार्केट चैलेंज. यस, इवन मोस्ट ऑफ हमारे जो क्रॉप्स, मतलब कोई एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर जो हमारे प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, मिनी products, they are not certified, and that's the reason, that's why they don't have that global market. Of course. So please just speak about it. Correctly said. आपने बहुत सही कहा. मुश्किल बुज्जी है ना, इसमें एरोमा काफ़ी अच्छा है, मतलब कंपेयर टू योर जो बासमती राइस और हमारे इंडिजिनस, और रेड राइस को मिला के इट हैज़ सम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स एज वेल. इसमें एक चैलेंज था हमारे लिए, वो था इसमें एक डिजीज़ लगती थी, ब्लास्ट फंगल डिजीज़ है, तो उस वजह से इट वाज वेरी प्रोन टू ब्लास्ट. तो जिस एरिया में मुश्किल बुज्जी होता था, तो समटाइम्स देयर वुड बी दिस ब्लास्ट एंड देन दिस होल क्रॉप वुड गो. अब हमने एक नई वैरायटी डेवलप करी है मुश्किल बुज्जी की है, जिसमें हमने ये रेजिस्टेंस टू ब्लास्ट को इंट्रोड्यूस किया. अब जो हमारे पास मुश्किल बुज्जी है, इट इज़ रेजिस्टेंट एंड टॉलरेंट टू ब्लास्ट. ब्लास्ट राइस में एक डिजीज लगती है. तो फिर इसका जो मार्केटिंग एक चैलेंज है, मार्केटिंग में यहाँ पे इसका प्राइस हमने जो एक इंडस्ट्री के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है, और मेरे ख्याल में 150 से 200 रुपए पर केजी के हिसाब से जो है ना वो बेच रहे हैं मार्केट में. और इसका इंटरनेशनल मार्केट हम एक्सप्लोर कर रहे थे कि हाउ कुड वी जस्ट सेल दिस मुश्क बुज्जी इन द इंटरनेशनल मार्केट. उसमें यह आ रहा था कि जब हम अपने नॉर्मल राइस पे वो स्प्रे करते थे टू कंटेन दैट ब्लास्ट डिजीज़, तो उसमें वो रेजिड्यूअल आता था वहाँ पे. जब वो रेजिड्यू एनालिसिस करते थे उस पर्टिकुलर जो प्लांट केमिकल जो फंगिसाइड, उसके लेवल्स मिनिमम से ऊपर आ रही थी. तो उसमें प्रॉब्लम थी कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मुश्किल बुज्जी एक्सेप्ट नहीं होता. तो अब जो हमने रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करी, तो आने वाले दिनों में हमें स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इस क्रॉप को इंटरनेशनल वहाँ तक ले जाए. और दूसरा सवाल आपका ये है कि जो बाकी हमारे निश क्रॉप्स हैं, जैसे वॉलनट है, आलमंड है, सैफरॉन है, काला जीरा है ना, बहुत सारे क्रॉप्स हैं. तो हनी है, तो इनको भी एक दिक्कत है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि कोई सर्टिफाइंग एजेंसी नहीं है. तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है ADP की, हमने जो है ना ये सारे निश क्रॉप्स हैं, और सारे निश क्रॉप्स को एक यूनिक आइडेंटिटी देने के लिए
ایک جی آئی ٹیگ ایک سسٹم ہے, ایک ٹیگ دے کے کوئی دوسرا بندہ اس کو کاپی نہ کرے, انفرنجمنٹ نہ کرے اور اس کی کوالٹی مینٹین ہو جائے. تو یہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے, ہفتوں پہلے شروع ہوا ہے. سو اب لائک ان پریزنٹ ٹائمس وی آر گوئنگ ٹوورڈس نا ہمارا ایک اربنائزیشن کا ایک آل اوور گلوبلی. سو اس میں سے ہمارے جو لینڈ ہے وہ شرنکیج ہو رہے ہیں. سو اس میں سے لائک مائی کوشچن ٹو یو ول بی لائک دا پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے, ایک پاپولیشن وہ گلوبلی انفیکٹ, اسی طریقے سے ہمارے کشمیر میں بھی پاپولیشن بڑھ رہی ہے. ہاؤ آر وی مینٹیننگ دیٹ نا وہ ایک ڈیمانڈ اور اس سپلائی میں وہ بیلنس کہاں سے ہم کریں, ہاؤ از اینڈ یونیورسٹی کنٹریبیوٹنگ ٹو دیٹ نا ڈیمانڈ فار فوڈ. یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ کہ بھائی جو ہماری جو لینڈ ہے اٹ از اسکیلنگ ویری فاسٹ. اور دوسرا بڑا جو چیلنج ہے ہماری لینڈ اٹ از گیٹنگ فریگمنٹڈ. فریگمنٹ سے مطلب ایک فیملی کے پاس مان لیجیے 2 ہیکٹر لینڈ تھی تو 4 بھائی اگر ہیں تو اٹ ول گیٹ فریگمنٹڈ. تو کنٹری لیول پہ جو لینڈ اویلیبلٹی ہے پر فیملی قریب 1 ہیکٹیئر ہے, 1.10 ہیکٹیئر پر فیملی. لیکن جموں کشمیر میں یہ جو لینڈ اویلیبلٹی اٹ از لیس دین ہاف ہیکٹیئر, 0.5. اور کشمیر میں یہ 0.4 ہیکٹیئر ہے, مطلب لینڈ ہولڈنگ کیپیسٹی بہت کم ہے. تو ایک چھوٹا فارمر اپنے کم زمین پہ کتنا کرے گا, اسی لیے ہمیں پالیسیز میں تبدیلی لانی پڑے گی. وہ یہ کہ ہم نے اب کیش کراپس کی طرف جانا ہوگا. اگر ہم نے اپنے فارم انکم کو بڑھانا ہے اور اپنے فارمر کی جو انکم کو بڑھانا ہے اور اس کی لائیولیہوڈ کو بڑھانا ہوگا, دین وی آر گوئنگ ٹو کیش کراپس نمبر 1. اور اس کے ساتھ میں ہم نے ٹیکنالوجی کو بھی لانا ہے. اور کیش کراپس میں جیسے ہم جو ویجیٹیبلس کی بات ہو رہی ہے, ایگزاٹک ویجیٹیبلس ہے نا, ویجیٹیبل سیڈ پروڈکٹ, فلوریکلچر بڑا امپورٹنٹ سیکٹر جو اب آنے والے سمے میں ہوگا. آپ کا جو ہمارا ہارٹیکلچر جو ہے یہاں پہ سیکٹر ہے, تو جو ہمارا ٹریڈیشنل ہمارا جو ایپل جو تھا آرچرڈ سسٹم, اس میں جو پروڈکٹیوٹی بہت کم تھی, قریب 10 ٹن پر ہیکٹیئر. اب جب جے کے گورنمنٹ اور ہماری یونیورسٹی نے بڑا رول پلے کیا کہ ہم ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن کو کیسے لائیں گے, اور اس کی پروڈکٹیوٹی قریب 60 ٹن ہے. اٹ از 6 ٹائمز مور دین دا ٹریڈیشنل. تو اسی طرح سے جو ہم میڈیسنل اور ایرومیٹک پلانٹس, لائف اسٹاک ہسبنڈری ہیز اے ٹریمنڈس رول. سے فار ایگزامپل چھوٹا پولٹری فارم ہے نا, ایک شیپ فارمنگ کو ہم کمرشل اسکیل پہ کریں گے, مشرومس کو ہم کر سکتے ہیں, ایپیکلچر کو کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے نا یہ کیش کراپس پر زیادہ زور ہے, اور اس کے ساتھ میں ٹیکنالوجی انٹیگریشن. اور اس کے بعد میں جو اسمال لینڈ ہولڈنگس ہیں ان کو ہم کیسے اس مارکیٹ لیول تک لائیں. اب ایک کانسیپٹ چل رہا ہے ہماری یونیورسٹی اور پوری جے کے گورنمنٹ کا, اس پہ بڑا زور ہے کہ ہم نے پوری یو ٹی جموں کشمیر میں قریب 300 فارمرس پروڈیوسرس آرگنائزیشن اسٹیبلش کرنی ہے. کیونکہ کسی ایک پرٹیکولر ایریا میں, ایک علاقے میں اگر ہم نے اس پروڈیوس کو مارکیٹ کرنا ہے, پہلے ایگریگیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. ایک چھوٹا فارمر ایک چھوٹے لینڈ ہولڈنگ کا جو پروڈیوس ہے وہ مارکیٹ میں نہیں بیچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ سارے فارمر مل کے ایک آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا ان کو سپورٹ کرتی ہے, وی کال دیم ایف پی اوز. تو آنے والے سمے میں ہم اس کی ایگریگیشن میں, اس کی پروسیسنگ میں, اور اس کے بعد ہم ان کو اس پروڈکٹ کا ویلیو ایڈیشن, اس کا پروسیسنگ, ویلیو ایڈیشن, برانڈنگ, مارکیٹنگ کروا رہے ہیں. جو ہماری یہاں پر ایک نئی ایگریکلچر پالیسی ہے, ول اٹ ہیلپ ان اٹ؟ ہاں, یہ آپ نے بہت صحیح سوال کیا. یہ سارے جو چیلنج آپ میرے سے ابھی پوچھ رہے تھے, ان سارے چیلنجز کو دماغ میں رکھتے ہوئے, ذہن میں رکھتے ہوئے, گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے جو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے اس پالیسی کو بھی رول آؤٹ کیا. پچھلے 1 سال سے جو ہے نا اس پالیسی پہ کام چل رہا تھا کہ ہم ایک ہالسٹک ایگریکلچرل پالیسی کیسے بنائیں. وہ والی پالیسی جو ماحول ہے, ہمارا انوائرمنٹ ہے, اس ماحول کو وہ خراب نہ کرے, ڈیمیج نہ کرے. کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارا گرین ریولوشن ہندوستان میں آیا تھا 1960s میں, اس گرین ریولوشن سے کافی زبردست فائدہ ہوا انڈیا کو, کنٹری کو, کہ جو ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری تھی اب ہم فوڈ سرپلس کنٹری بن گئے. مگر ساتھ میں جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں کافی ڈیمیج ان کو ہوئے, جیسے وہ سوائل کوالٹی ہو یا واٹر کوالٹی ہو, یا واٹر ٹیبل کافی نیچے جا رہا ہے پنجاب ہریانہ میں, یا ایئر پولوشن ہو رہا ہے. اور تو ہم نے اس پالیسی میں یہ دھیان رکھا ہے کہ ہم نے اب جو فوڈ سیکیورٹی سے آگے سوچنا ہے, نیوٹریشنل سیکیورٹی اور اکنامک سیکیورٹی, یہ اس کا پہلا پرنسپل ہے. دوسرا ہے ہمارا انوائرمنٹ کو ہم ڈیمیج نہیں کریں. اور تیسرا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی بہت سارے کچھ ایسے سیگمنٹس, مارجنل فرنج کمیونٹیز ہیں جو اس ڈیولپمنٹل پروسیس سے بھی بہت پیچھے ہیں. تو جو آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب نے جو پالیسی رول آؤٹ کی ہے, وہ پالیسی قریب 5013 کروڑ کی پالیسی ہے. وہ انڈیا کا سب سے بڑا ایک آرگنائزڈ اور ویل اسٹرکچرڈ پروگرام ہے جو ایگریکلچر پالیسی. اور اس پالیسی کے ہم نے
बनाने से जब हमने रोल आउट करी, हमें आज पता है कि हमने इस पॉलिसी की जो टारगेट्स और अचीवमेंट्स क्या होंगी। तो बड़ा जोर है इस पर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर पे, प्रोसेसिंग पे, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग पे, एग्रीगेशन पे। ये जो सीड चेन जिसकी मैं बात कर रहा था कि वो एक थोड़ा सा एक चैलेंज है हमारा बड़ा, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। फिर हम डाइवर्सिफिकेशन भी कैसे करेंगे। और 50% लैंड हमारी जम्मू कश्मीर में जो रेनफेड है, जहाँ हम इरिगेशन नहीं दे सकते हैं, उस 50% लैंड को हम किस तरह से डाइवर्सिफाइड क्रॉप कल्टीवेशन में लाएंगे। तो इस पॉलिसी से अगर मोटे तौर से मैं आपको बताऊं, हमारी जो एग्रीकल्चर जीडीपी जम्मू कश्मीर है वो करीब 37,000 करोड़ है आज की डेट में, जो टोटल वैल्यू है एग्रीकल्चर का। अगले 5 साल में हमारा टारगेट है, हमने इसको डबल करना है। ये करीब 70-80 हज़ार करोड़ हमने करना होगा। और इस प्रोसेस में हम एग्रीकल्चर को अब सस्टेनेबल से सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से ऊपर लेके हमने इसको कमर्शियल एग्रीकल्चर में लाना है। और उससे हमारे जॉब क्रिएशन हो जाएंगे, और हमारे जो एजुकेटेड यूथ है, रूरल या अर्बन एजुकेटेड यूथ है, उनको अब पब्लिक सेक्टर में नौकरियां ढूंढनी नहीं होंगी। दे विल बी हैविंग देयर ओन वेंचर्स, ओन बिजनेस इन एग्रीकल्चर, एंड वो वाली प्रॉब्लम भी हमारे साथ हो जाए। My primary question to you, like what are the challenges we are facing in agriculture in Jammu and Kashmir? Fine, but climate change seems to be one of the biggest One of the challenges, changes. and it's also globally, Global. पूरी दुनिया में है। Exactly. So कौन से चैलेंज है हमें यहाँ पर climate change के साथ? जैसे मेरे ख्याल में ये तो बहुत ही विजिबल है कि आज से 20-25 साल पहले जब आप देख रहे थे कि जो हमारे ये जो सारे इतने खूबसूरत पहाड़ हुआ करते थे, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स होते थे पहाड़ों पे, और उन ग्लेशियर से पेरिनियल फ्रेश वाटर आया करता था हमारी नदियों में, झीलों में, नहरों में, दरियाओं में। अब वो ग्लेशियर बहुत तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं पीछे, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आने वाले समय में हमने तैयार होना है इस बात के लिए कि वाटर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कार्स। और उसके लिए वी हैव टू गेट इन द टेक्नोलॉजी। अब हमने ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को लाना है जिससे हम पानी का कम इस्तेमाल, जैसे माइक्रो इरीगेशन टेक्नोलॉजीज़ को हमने इंट्रोड्यूस करना है। अब हम फ्लड इरीगेशन नहीं करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ग्लोबल जो ये क्लाइमेट चेंज से ये हमारी क्रॉप प्रोडक्शन को बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। बहुत सेंसिटिव है एग्रीकल्चर टू द क्लाइमेट चेंज और टू द वेदर पैटर्न चेंजेस, और वो भी अगर इरेटिक वेदर्स हो, तो उसके लिए भी हमने एडजस्ट करना होगा अपने आप को क्लाइमेट के हिसाब से। तो अब जो हमारा नया एग्रीकल्चर होगा, ये होगा रेजिलेंट एग्रीकल्चर, और ये होगा क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। उस रेजिलेंट और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्या मतलब है कि हमने ऐसे क्रॉप्स को यहाँ पे ग्रो करना होगा कि विच कैन सस्टेन दिस वगरीज ऑफ दिस क्लाइमेट। और हमने जो नई वैराइटीज़ डेवलप करनी होंगी, नई वैराइटीज़ ऑफ द क्रॉप्स, दे शुड बी resistant or tolerant to these stresses, both biotic and abiotic stresses. So for example, cold tolerant होने चाहिए, moisture strengthen. मैं आपको बताऊं कि मेज़ में हमने एक वैरायटी डेवलप करी है KG2, किशन गंगा 2 वैरायटी है। तो हाई अल्टीट्यूड एरियाज़ में अगर हम इस मेज़ को कल्टीवेट करते हैं, इसमें पानी की ज़रूरत कम है, और इसका यील्ड पोटेंशियल नॉर्मल मेज़ से कम 3 गुना 4 गुना ज़्यादा है। इसको बोलते हैं क्लिप। और सो आपने लाइक यू टॉक अबाउट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, इसी हवाले से मुझे एक सवाल आया कि लाइक टू रिवर्स दिस ट्रेंड, बिकॉज वी हैव दोज प्लान्स कि लाइक वी हैव दिस न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी इन प्लेस, तो we have this envision of achieving a specific target, a goal within next 5 years. So is there any concept of this organic farming? यस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये जो मैं बताया आपको, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने रोल आउट करी, इस पॉलिसी का नाम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। ये एक जो है ना इंक्लूसिव सस्टेनेबल एक एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है। तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। और शायद मैंने शुरू में ही कहा कि जब ये पॉलिसी बन रही थी तो हमारा ध्यान इस बात पे था कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान और डिग्रेड किया है, तो उसको रिवर्स करने के लिए हमने थोड़ा सा जो है ना इसमें जो जो हम इनपुट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो फर्टिलाइज़र्स को हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे। हम जब जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स यूज़ कर रहे थे, अब हमें जाना होगा टुवर्ड्स बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, है ना, जो ऑर्गेनिकली डिराइव्ड पेस्टिसाइड्स हो वो हो। और कुछ और प्रैक्टिसेस हमने यूज़ करनी होगी जिससे हम सॉइल हेल्थ को ज़्यादा डिग्रेड नहीं करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, ऑर्गेनिक सेंटर, वाडूरा हमारा एक कॉलेज है। करीब हमने 12 से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इस यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए हैं।
मेरे ख्याल में आजकल सभी लोग जानते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग सभी लोग आजकल बड़ी ज़बरदस्त डिमांड है, और बाहर से भी काफ़ी सारा जो है ना वो एक आता है वर्मी कंपोस्ट जो तो अब कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे यूनिट्स बन रहे हैं, और हम भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑर्गेनिक इनपुट्स को यहाँ लोकली प्रोड्यूस करें, और उसी को हम एक हम बता सकते हैं कि इसको ज़ीरो वेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, हम उसको रिसाइकिल करेंगे, जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को हम रिसाइकिल करके उसको कंपोस्ट करेंगे, और कंपोस्ट करके हम उसी को वापस यूज़ करेंगे। जो हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट है, लाइक ग्रीन रेवोल्यूशन थे, वाइट रेवोल्यूशन था, देयर वर मेनी रेवोल्यूशंस, उसका हमने एक फ्लिप साइड भी देखा है, और उसका फ्लिप साइड ये था कि लाइक इट हैड इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, Yes. है ना सर? तो उसके बाद हाउ डू यू रियली सी कि लाइक यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो conducting any kind of a research which may help in like organic plants, herbal plants, which is there any sort of research done on that basis? इसके दो चार हमारे अप्रोच हैं जो आप कह रहे Especially हैं कि anti-cancer drugs. जो ह्यूमन हेल्थ को जो चैलेंजेस हैं, एक बड़ा चैलेंज है ह्यूमन हेल्थ को जो हम एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स कर रहे हैं। बिल्कुल। इस प्रोग्राम में एक और प्रोजेक्ट है हमारा, वो है कि हाउ कैन वी रिड्यूस द यूज़ ऑफ दीज एग्रोकेमिकल्स, मतलब मोस्ट ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक, उनका हम यूज़ कम कैसे करेंगे। जैसे इसमें भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। टेक्नोलॉजी का यूज़ इस तरह से, अभी हमने कुछ दिनों पहले एक मेड इन जो है ना ड्रोन फ्लाइट्स ली थी, और हमने देखा कि अगर हमने अब ड्रोन को यूज़ किया, टेक्नोलॉजी को यूज़, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ किया फॉर स्प्रेइंग, हम करीब 80% जो पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं किसी भी क्रॉप पे, वो हम सेव कर सकते हैं। अगर हमने 80% पेस्टिसाइड कम किया, इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा हमने ह्यूमन को एक्सपोज नहीं किया और एनवायरनमेंट को एक्सपोज नहीं किया, और उतना ज़्यादा जो पेस्टिसाइड लोड हमारे वेजिटेबल्स फ्रूट्स पर नहीं आएगा, और उससे हम आने वाले समय में इनको ये बचा सकते हैं। और दूसरा बड़ा जो आपने कहा कि हमारे पास नेचर हैज़ बेस्टोड अस विथ ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी ऑफ मेडिसिनल plants, in our forests. And unfortunately, we have not been so far been able to explore and sustainably exploit that diversity. इस प्रोजेक्ट में जो हॉलिस्टिक प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, इस पर भी एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हम ये जो मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स को हम प्रमोट करेंगे। और मुझे खुशी की बात यह है कि हमारा एक डिवीज़न है यहाँ पे, डिवीज़न ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, वो इन हर्ब्स के जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। और हाल ही में हमारा एक फैकल्टी मेंबर है, आई मीन एक टीचर है, उसने एक किसी हर्ब में एंटी कैंसर, एंटी प्रोस्टेट कैंसर प्रॉपर्टीज़ देखी। तो उस एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ को करने के बाद हमने एक फूड प्रोडक्ट बना लिया, और वो पेपर जब उसने पब्लिश किया तो ग्लोबली इट हैज़ बीन वेरी वेल एक्नॉलेज्ड। अब उस पर एक फैकल्टी का स्टार्टअप और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने खड़ी करी है। हमने टेक्नोलॉजी की बात की, ये सब लाइक वेयर आर वी, लाइक आर वी कोलैबोरेटिंग विद एनी कंट्री, एनी इंस्टीट्यूट टू गेट दिस ऑल टेक्नोलॉजी? वेरी गुड, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत सही सवाल है आपका। हमारी यूनिवर्सिटी को पता है और हमें पता है कि हम सारी जो हमारे जो इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं, शायद कि हम अकेले सारे इश्यूज़ और चैलेंजेस का हल नहीं ढूंढ सकते हैं। वी हैव टू कोलैबोरेट विथ the institutions within the UT of Jammu and Kashmir, with premier institutions around the country and globally. मुझे बताने में खुशी है कि अभी कम से कम 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारी टाई अप्स चल रहे हैं, इंटरनेशनल के साथ। और अभी एक प्रोग्राम इस साल हमारे करीब 12 बच्चे जो है ना जो एक जॉइंट रिसर्च कर रहे हैं बिटवीन दिस यूनिवर्सिटी एंड बिटवीन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। मतलब अब हमारा बच्चा जो यहाँ पर रजिस्टर है, we are encouraging our students to work simultaneously with those foreign, and they have been provided some scholarships 4 महीने का 6 महीने का। और हाल ही में हमारे कई सारे बच्चे और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में जिनका एडमिशन हुआ है, हम ऑस्ट्रेलिया में एक यूनिवर्सिटी है उनके साथ हम एक जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम। उसमें बच्चा यहाँ पर रजिस्टर होगा, ही विल बी स्पेंडिंग 1 ईयर इन दिस यूनिवर्सिटी एंड 1 ईयर ही विल बी स्पेंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसका खर्चा कम होगा, बट देन इट वुड बी अ ड्यूअल डिग्री फॉर हिम। He will get a degree from this university and he will get a degree from the Western Sydney University. इसी तरह से कई सारे ऐसे institutions. Israel is leading in agriculture, like Yes. do we have any collaborations with them?
As on date we don't have any formal collaboration with Israel, but आने वाले समय में आप जो हमारे यहाँ पे एक पीछे एक ऑर्चर्ड देखेंगे, उस ऑर्चर्ड में पूरा ड्रिप इरिगेशन है, और आने वाले समय में हम इस पूरे इरिगेशन को सेंसर बेस्ड और जो है ना स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे. ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है और इसराइल का भी कॉन्सेप्ट है. So, like, my next question to you will be about this national education policy and how university is planning to implement it. We are not planning to implement It has national already. education policy. We are the no. I mean, in the country, we have the privilege of first aligning our education system with national education policy, and then coming up with a model of education, agri education, and that model has been accepted at the country level, and that model of education aligned to NEP has been is being implemented in this university. उसमें मैं आपको बताऊं, शायद कुछ दिनों पहले यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था. इट वाज अ फाउंडेशन प्रोग्राम. Foundation program is something about telling our young students who are entering into any university that besides being very knowledgeable and technically very sound, उनको लाइफ एंड सोशल स्किल्स के बारे में पता होना है. मैंने कहा आपसे कि हमारा जो एंडेवर है वो ये है कि हाउ डू वी चर्न दोज ग्लोबल नेक्स्ट जन लीडर्स. तो एक स्टूडेंट्स ग्लोबल नेक्स्ट जन लीडर्स, इसका मतलब है कि उसको नॉलेज और टेक्नोलॉजी के साथ में उसके जो है ना सॉफ्ट स्किल्स बड़े ज़रूरी होनी चाहिए. उसकी लीडरशिप, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके लाइफ स्किल्स, उसके सोशल स्किल्स होना ज़रूरी है. तो हमने पहली बार पूरी कंट्री में 3 वीक्स एक फाउंडेशन प्रोग्राम किया था अभी पिछले महीने, और उसकी टैग लाइन थी फाउंडेशन प्रोग्राम. आई गॉट फॉरगेट इट. सो इसी तरह से जो हमने जो अपने प्रोग्राम यहाँ पे डिज़ाइन किया वो बहुत ही डिफरेंट है. हमने अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को आप ये कहा है कि दैट इट वुड बी अ डिग्री बाई डिज़ाइन. आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक जो प्रोविजन है वो है, और जोर है इस बात पे कि दैट एजुकेशन शुड बी चॉइस बेस्ड, इट शुड बी फ्लेक्सिबल. तो हमने कहा कि जो हमारे साथ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं, all of those programs, a student when he would be seeking admission in this university, he will design his own curriculum. We say degree by design. हम 4 साल में उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोर नॉलेज और कोर जो है ना उसको इंफॉर्मेशन और सब कुछ देंगे, लेकिन साथ में हम उसको किसी एक खास उसके एक स्पेसिफिक स्किल पे हम उसको ट्रेन करेंगे 4 साल में, जो उसके अपनी चॉइस का होगा. इसी तरह से हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, मास्टर्स और PhD, हम उसको अब सैंडविच प्रोग्राम में कर रहे हैं. कि अब जो बच्चा यहाँ पे एडमिट होगा हमारी यूनिवर्सिटी में, उसको अब ज़रूरी है कि वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ही विल स्टे पार्ट ऑफ हिज टाइम एट सम अदर यूनिवर्सिटी. तो इस तरह से जो है ना वी आर द पायनियर्स इन इंडिया as far as agricultural education is concerned in conceiving, conceptualizing and developing a model and working that on that model. और उसमें बड़ा जोर है इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स पे. और हमने उस पॉलिसी को देखते हुए अपनी यूनिवर्सिटी में ये 4th मैंडेट इंट्रोड्यूस किया इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स का. How many startups are with you? हाँ, मैं बताऊँ आपको, जब हम क्वालिटी ऑफ रिसर्च की बात करेंगे तो वी डू मेजर क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द पब्लिकेशन, इन टर्म्स ऑफ द the rating of those journals, but at the same time in terms of the patents we are getting, or any institution getting, and in terms of the technologies we are developing, and in terms of the startups we are building. How many patents? We have so far 7 patents this university has earned, but this year we have applied 40 patent applications. 40. तो 40 में से हमें उम्मीद है कि मतलब वी शुड क्वालिफाई फॉर सम ऑफ द पेटेंट्स. इसी तरह से हमने जो स्टूडेंट और फैकल्टी स्टार्टअप्स की भी मैंने बात करी थी, 10 हमारे स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं और 3 हमारे फैकल्टी स्टार्टअप्स हैं. सो इसी तरह से अगर हमने इसको अलाइन करना होगा जो एजुकेशन ऑफ द 21st century, then we have to also simultaneously go by those new technologies. इस यूनिवर्सिटी में we are establishing one center for artificial intelligence machine learning in agriculture, and it would be one of the best in agriculture in the country. We are working very hard on that, On artificial engineering. on artificial intelligence and machine learning, because now this is the age of the drone technology, the robotics, the artificial intelligence, the blockchain technology. So we have to teach our students from today that
you need to be skilled in these new skills, otherwise in coming years they will become obsolete. اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں جو میرے دیکھنے والے جو یہاں پہ ہمارے بچے ہیں یا سامعین ہیں کہ آنے والے 5-10 سالوں میں جو انڈسٹری میں جو کام کرنے والے ہمارے جو لوگ ہیں جو ورک فورس ہیں قریب 20-25% would become obsolete. کیونکہ انڈسٹری وانٹ بی ریکوائرنگ دیئر اسکلس، دے ول سے دیٹ دے آر ناٹ ریکوائرڈ ہینڈ فورتھ ان آور انڈسٹری، سو ان کو چھٹی کر دیں گے. تو جو ویکیوم کریٹ ہوگا، سو وی ہیو ٹو فل دیٹ ویکیوم، سو وی ہیو ٹو اسکل our students and make them industry ready with the skills which are required by the industry in 5-10 years from now on. So we are preparing right from now. I have another question which is regarding آپ کی یونیورسٹی میں فارن اسٹوڈنٹس کو بھی ایڈمیشن دیا جاتا ہے. وٹ از یونیورسٹی ڈوئنگ ٹو آؤٹ ریچ دیم اینڈ ہاؤ مینی فارن اسٹوڈنٹس آر ایکچولی ابھی جو ہمارے پاس جو فارن اسٹوڈنٹس ہیں دے یوز ٹو کم تھرو انٹرنیشنل کلچرل سینٹر، انڈین انٹرنیشنل کلچرل سینٹر. 10-12 اسٹوڈنٹ ٹوٹل آئے ہوئے ہماری یونیورسٹی میں. کچھ اس میں سے ڈگری کر کے گئے ہیں، کچھ ابھی شاید کر رہے ہیں. لیکن اب ہم نے اپنی یونیورسٹی کو فارملی اوپن کیا ہوا ہے فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس. اینڈ فرام دی سیشن 2023 would be working with all the embassies of all the countries in India and reaching them so that we are able to attract those foreign students to Kashmir. اور کشمیر میں ہم ایجوکیشنل ٹورزم کا ایک نیا چیپٹر کھولنا چاہیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ Kashmir should have been the best destination for education in India, but then unfortunately we have missed the bus. But then we are taking that first step, and we are also expecting, rather approaching our sister universities, they should equally have those kind of the initiatives so that we are part of that whole process. Usme. So maybe in coming days we are going to also hold one education fair in India, wherein we'll be interacting with those embassies. Fine. So what about the role of agrobiotechnology and its scope? Agrobiotechnology, because some of these sciences, are the sciences of the 21st century. جیسے میں ابھی بتا رہا تھا ICT is something which has revolutionized today's age. انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، جس میں یہ سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، یہ جو آپ انٹرنیٹ اور یہ جو اسمارٹ فونس ہے نا، سو ایوری تھنگ از ڈریون بائی دس تھنگ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم از دس ایگرو بایو ٹیکنالوجی، اینڈ دس از جب آپ ابھی بات کر رہے تھے ہم سے کہ بھائی ہم نے کلائمیٹ کو کیسے ہاؤ کین وی جیسے آلسو کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر، جو بھی میں نے بات کری تھی، تو بایو ٹیکنالوجی از اے ٹریمنڈس رول. مجھے میں آپ کو ایک بات آپ سے اور شیئر کروں. ابھی شاید کچھ دنوں پہلے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا پروگرام اور پروجیکٹ اپروو کیا ہے. اٹ از اباؤٹ اسپیڈ بریڈنگ، ہے نا، اینڈ اٹس اباؤٹ فینومکس اینڈ اٹس اباؤٹ جینومکس، ایڈوانس ایگری بایو ٹیکنالوجی، جس سے ہم اپنی جو ایفرٹس ہیں ہماری آپ ڈیولپنگ نیو ویرائٹیز اینڈ نیو سیڈس، ان کو ہم کیسے کریں گے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات بھی کری تھی اباؤٹ ویکسین ڈیولپمنٹ، سو اٹ از آل اے پلے آف دس ایگری بایو ٹیکنالوجی. اور ایک نئی ٹیکنالوجی آ رہی اس وقت جو ہے، اس وقت وی کال اٹ کرسپر کیس ٹیکنالوجی، جس کو ہم بولتے ہیں جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی. آپ نے شاید سنا ہوگا کہ کچھ ٹرانسجینک کراپس پہ انڈیا میں جو ہے نا کبھی بین تھی کہ ہم ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں ایک جین کو ٹرانسفر کریں، اور اس کے بعد ہم کو یہ رہتا تھا کہ بھائی وہ جین ہاؤ وڈ دیٹ جین بہیو ان دیٹ نیو ہوسٹ، ان دیٹ پلانٹ. اور گورنمنٹ آف انڈیا یہ سوچ رہی تھی کہ مے بی اٹ شوڈ ناٹ ڈیمیج آور انوائرمنٹ، ہے نا. اب ایک اور ٹیکنالوجی وی کال اٹ جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی، کرسپر کیس ٹیکنالوجی. اور مجھے کہنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ جو ہماری فیکلٹی ہے اس یونیورسٹی میں، ناؤ they are working on this gene editing technology where we would be directly editing that gene of interest, and we are running a program on that gene. So it has a tremendous potential, and we have to simultaneously and continuously build our capacity to see that we prepare our young students for these future challenges. Now we are concluding, but I have this last final question, and that is we talked about teaching, we talked about research, we talked about different mandates جس میں innovation startups ہے. ایک فارمر کو کیسے فائدہ آتا ہے فرام یونیورسٹی؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میرے خیال میں آپ بھی صبح گھر سے یہاں تک آئے ہیں، آپ صبح ایک اچھا بریک فاسٹ آپ نے کیا ہوگا، اور لنچ بھی آپ نے کیا ہوگا بڑھیا سا، شام کو ڈنر بھی کریں گے. اور ہم بہت کانشیس ہیں آج کل نیوٹریشس فوڈ کی، ہے نا.
تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. somebody is doing it at the back. It is a farmer who is producing this all for us. اور فارمر کے پیچھے کوئی بندہ ہے جو اس کو سمجھا رہا ہے اور سکھا رہا ہے. اس میں یونیورسٹی بھی ہے اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, ہارٹیکلچر ہے, لائف اسٹاک ہسبنڈری ہے, سو آل آف اس. سو آئی بلیو دیٹ وی آر ان اے کمفرٹیبل سچویشن دس ٹائم. 1960s کی اگر آپ بات کریں, ہول آف دی انڈیا واز اے فوڈ ڈیفیسٹ. کشمیر واز اے فوڈ ڈیفیسٹ نیشن. اف یو آسک یور پیرنٹس, یور گرینڈ پیرنٹس, بھائی دودھ تو کسی نے دیکھا نہیں تھا پہلے زمانے میں, ہے نا. وی یوز ٹو ٹیک دیٹ بلیک ٹی ان مائی چائلڈہڈ ڈیز اونلی, ہے نا. سو یو سی دی ملک وچ وی آر کنزیومنگ ٹوڈے, یو نو, اس طرح سے جو ہے نا, فار آل ریزنز بینیفٹس آر گوئنگ ٹو دی فارمر. لیکن وہ ابھی تک ایک اسمال اسکیل پہ تھا, ایک سبسسٹنس پہ تھا, وہ کمرشل لیول پہ نہیں آیا تھا. اب یونیورسٹی نے گورنمنٹ کے ساتھ اور باقی جو ہمارے اسٹیک ہولڈر ان کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا, اب ہم اس کو اسمال اسکیل اور سبسسٹنس سے اوپر لے کے ہم اس کو نئی ٹیکنالوجیز, نئے کیش کراپس, نئے مارکیٹ اور نئی جو فوڈ پروسیسنگ بزنس کو سکھا کے, اسکلس کو سکھا کے ہم اس کو کمرشل لیول پہ کیسے لائیں گے. یہ ہمارا چیلنج ہے آنے والے دنوں میں کہ ہم اس ایگریکلچر کو ایک ایگری اکانومی میں کیسے کنورٹ کریں گے. اس میں سب سے بڑا جو بینیفیشری ہوگا وہ ہمارا فارمر ہوگا. تھینک یو سو مچ فار یور انٹرویو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو کشمیر لائف فار ہیونگ می ہیئر.